My name is Dr. Vinay Gupta, and right now I am serving in District Mental Health Program in District Civil Hospital Cathal as Monitoring and Evaluation Officer. In our District Civil Hospital Cathal, we have Department of Psychiatry, under which there are different subordinate departments which deals, treats and counsels the patients with various mental health problems and their addiction problems at large. Like number 1, we have District Mental Health Program that deals, treats and counsels the patients with depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, fits, seizures, convulsions, Alzheimer's disease, dementia, bipolar disorder, attention deficit hyperactivity disorder, that is ADHD, and other problems that are well classified in International Classification of Diseases ICD-11 that is released by World Health Organization WHO time to time. Number 2, we have dedicated drug de-addiction center DDC, which treats, deals and counsels the patients which are having some kind of substance abuse in their life, may it be alcohol or morphine, opioid drugs like smack, chitta, bhukki, afim, dodi, ketamine, amphetamine, LSD, lysergic acid, diethyl amine, cocaine, heroin, etc. Number 3, we have TSC, Tobacco Cessation Center, which deals, treats and counsels the patients with the persons who are having addiction to the nicotine containing drugs like tobacco, chewing tobacco, smoking tobacco and other forms of tobacco. Number 4, we have OST Center, Opioid Substitution Therapy Center, which deals, treats and counsels the patients who take drugs by intravenous methods, who inject drugs in their veins by the modes of injection, syringes, etc. Number 5, we have Addiction Treatment Facility ATF, that is directly governed by All India Institute of Medical Sciences AIIMS New Delhi, which is an autonomous authority of Government of India, and right now we have 102 centers pan India in different states in our country which are dealing specially with the persons who are addicted to some kind of drugs. Then we have other connected departments with these drug de-addiction centers. Whenever a drug abuser comes to our District Civil Hospital Cathal facility and visits any of these subordinate departments of Department of Psychiatry, the person is screened for various blood-borne diseases, the diseases which spread through blood like HIV, human immunodeficiency virus, or AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, or hepatitis B or hepatitis C. Then if a person has to be tested for HIV in his or her blood, then the person is, or the patient is referred to the ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, and if found positive for AIDS or HIV, the person is then referred to the ART center, that is Antiretroviral Therapy Center, in which that AIDS positive, HIV positive person receives treatment free of cost. Both of these, ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, and ART, Antiretroviral Therapy Center, comes under the direct control of Haryana State's AIDS Control Society at SACS, which is ultimately governed by the NACO, National AIDS Control Organization, New Delhi. क्यों हम आपके स्कूल में आज दर्शन एकेडमी में इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हर साल 10 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाना ज़रूरी हुआ? क्योंकि साल 2015 में लगभग 8,28,000 लोगों ने सुसाइड से अपनी जान गंवा दी, और 2015 में ही 10 मिलियन से 20 मिलियन पर्सन्स ने, 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने नॉन फैटल सुसाइडल अटैम्प्ट किया। नॉन फैटल होता है जिसमें व्यक्ति की जान नहीं जाती है, लेकिन वो ऐसी इंजरी सफ़र कर जाता है जिससे उसको पूरी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ता है। जैसे अगर किसी ने सुसाइड करने के लिए छत से कूदने की कोशिश किया, कूद गया, लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन उसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, स्कल में फ्रैक्चर आ गया, ब्रेन इंजरीज होगी उसको, तो पूरी लाइफ उसे उन इंजरी से सफ़र करना पड़ा। दैट इज नॉन फैटल सुसाइडल अटैम्प्ट, इन विच द पर्सन डज नॉट लूजेज हिज लाइफ बट ही रिमेन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, और सम काइंड ऑफ इंजरीज आर सस्टेन्ड लाइफ लॉन्ग। जिन भी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में साइड लग जाता है, CIDE, उन मेजॉरिटी केसेस में उस वर्ड का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उससे संबंधित है जिससे वो किसी की जान ले सकता है या मौत की नींद सुला सकता है। जैसे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, जर्मिसाइड, फंगीसाइड, एल्गीसाइड, सुने आप सबने? ऐसे ही फ्रेट्रीसाइड, अगर कोई भाई अपने बहन की हत्या कर दे, मर्डर कर दे, या भाई बहन जो अपने भाई की हत्या कर दे, उसे बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। और सुसाइड, जिसमें हम खुद की ही जान ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उसे सुसाइड बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल फीटिसाइड, आपने वर्ड सुना होगा कि कन्या भ्रूण हत्या की
गर्भ में ही लड़की को मार दिया पैदा होने से पहले, दैट इज़ ऑल्सो फीमेल फीटिसाइड। तो यानी जहाँ पर भी साइड शब्द लग जाए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसका मतलब होता है कि वहाँ पर हत्या हो रही है किसी की। अब एक होता है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया टर्म का मतलब होता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति खुद ये कहता है सरकार से कि मुझे आप मार दो क्योंकि मेरा जीना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मरना मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि मेरी बॉडी में ऐसी बीमारी है जिससे मुझे काफ़ी दर्द होता है, मैं नहीं जी पा रहा हूँ। तो सरकार उसको कहती है कि ठीक है, एक मेडिकल प्रोफेशनल तेरे को दे देते हैं और उसको इंजेक्शन और एक टैबलेट देके हमेशा के लिए पेनलेस तरीके से, दर्द रहित तरीके से उसको मौत की नींद सुला दिया जाता है। और जो होमिसाइड होता है या मर्डर सुसाइड होता है, जैसे हम कहते हैं ना उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसकी जान ले ली, दैट इज़ मर्डर सुसाइड, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है। और जीनोसाइड होता है जहाँ पर एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा लोगों की जान ले लेता है, हज़ारों लोगों की जान ले लेता है, 2 से ज़्यादा लोगों की जान लेता है, जीनोसाइड। मास सुसाइड एक वर्ड होता है जहाँ पर एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होकर डिसीजन ले लेते हैं कि हमने आज अपनी जान देनी है, सुसाइड करना है। एक वाकया हुआ था आज से कुछ दिन पहले, धर्म गुरु थे वहाँ पे कोई, जैसे गुरु नहीं होते, गुरु बना लेते हैं लोग, तो गुरु ने पार्क में 1000 लोगों को इकट्ठा कर लिया अपने शिष्यों को और कहा कि तुम ये प्रसाद खा लो और इससे हम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। एक साथ 909 लोगों ने ऑन दी स्पॉट मास सुसाइड कमिट कर ली, वो लार्जेस्ट मास सुसाइड इन हिस्ट्री था। इसके अलावा एक वर्ड होता है सुसाइडल अटैक, जहाँ पर एक व्यक्ति खुद को भी मार लेता है और दूसरे व्यक्तियों को भी मार देता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सैनिक है, उसको गुस्सा आ गया अपने सीनियर्स पे, तो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और सबको गोली मार देता है और लास्ट में खुद को भी गोली मार लेता है। या जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनका एक सुसाइड बॉम्बर जाता है, खुद के ऊपर बॉम्ब बांध के और लोगों के बीच में चला जाता है और खुद को बम से उड़ा लेता है, उसको सुसाइडल अटैक बोलते हैं। अब अगर लिटरेचर की बात करें तो सुसाइड के साथ एक वर्ड जोड़ते हैं अक्सर हम, कमिट सुसाइड, दैट द बॉय हैज़ कमिटेड सुसाइड, द गर्ल हैज़ कमिटेड सुसाइड, द पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो कई लिटरेचर वालों ने इसका विरोध किया कि कमिट का मतलब होता है कि उसने कोई गलती कर दी, कोई क्राइम कर दिया, तो इसके साथ कमिट वर्ड ना जोड़ा जाए क्योंकि उसकी तो ऐसी जान चली गई। तो अब ज़्यादातर न्यूज़ में कमिटेड सुसाइड की जगह डाइड बाय सुसाइड, की उसकी मृत्यु हो गई सुसाइड के चलते। अब कोई व्यक्ति मर जाता है और वो हॉस्पिटल में आता है और उसकी बॉडी को हम कट करके उसको एग्जामिनेशन करते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, वर्ड क्या होता है, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है पोस्टमार्टम, मरने के बाद। तो जब सुसाइड किए हुए लोगों की बॉडी हमारे पास आती है तो हम उसकी बॉडी के स्कल को काट के ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जब हम स्टडी करते हैं, हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, बेसल गैंग्लिया, बेसल कॉर्टेक्स, मेनिंजिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो जब उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काट कर देखा गया तो उसमें 2 केमिकल्स कम मिले। नंबर 1 BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, एंड नंबर 2 सीरोटोनिन। सीरोटोनिन वो केमिकल होता है जो हमें खुश रखता है। ये पता लगा इसका मतलब रिसर्च में कि जिनके अंदर खुशी कम होती है, सीरोटोनिन कम होता है, वो लोग ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करने की संभावना उनकी होती है। अब घटते क्रम में जानिएगा कि क्या वो कारण है जिसके चलते एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेता है। नंबर 1 डायग्नोज्ड मेंटल प्रॉब्लम। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के दौरान कभी डिप्रेशन रही हो, एंग्जाइटी रही हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहा हो, भूलने की बीमारी अल्जाइमर्स डिजीज़ रहा हो, डिमेंशिया रहा हो, बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो, कोई भी पार्किंसंस डिजीज़ रहा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। रीसेंट और अपकमिंग क्राइसिस, जैसे आपका रिजल्ट आ जाए, आप फेल होने वाले हैं, आपको पता है आप फेल हो गए हैं, तो आपको क्राइसिस आता हुआ लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, टीचर्स क्या कहेंगे, उस अपकमिंग क्राइसिस के चलते लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इंटीमेट पार्टनर प्रॉब्लम, इंटीमेट का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमारे फिजिकल रिलेशंस होते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, वो हमारे वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं। जब उनके साथ हमें किसी तरह की प्रॉब्लम आने लगती है तो वो लोग सुसाइड कमिट कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि उसका जीना मुश्किल हो गया, ऐसे लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अल्कोहल प्रॉब्लम, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है। सब्सटेंस अब्यूज़, जो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो सस्ता नशा हो, सूखा नशा हो, स्मैक हो, बुक्की हो, कोकीन हो, हीरोइन हो, उसके अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट ज़्यादा होता है। आर्ग्यूमेंट, अगर हाल फिलहाल में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, अक्सर लोगों की आदत होती है बहस लगाने की कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, तू गलत है, तो अगर हाल फिलहाल में किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है तो ऐसे लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, अब आप बच्चे तो ठीक हो बिल्कुल, टीचर्स भी आके ठीक हैं, लेकिन इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है,
रोज़ हस्बैंड जो है वो शराब पीकर आता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, अपने वर्क स्ट्रेस को हमारे ऊपर निकालता है, हमारे फादर हमारी मदर को गाली गलौज कर रहे हैं, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलेश हो रहे हैं, तो ऐसे लोग सुसाइडल अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनके घर के लोग। जॉब प्रॉब्लम, अब आपने सारी डिग्रीज़ ले ली, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री, नेट भी क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप कभी जॉब नहीं लग पाए, तो अनएम्प्लॉयड होकर व्यक्ति सुसाइडल अटैम्प्ट कर लेता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आजकल हम सभी लोग लोन पे चल रहे हैं, गाड़ी ले ली लोन पे, आईफोन ले लिया, फ़ोन ले लिया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, जो भी चीज़ है कि हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन लोन चुकाने की हैसियत नहीं है, इनकम है नहीं, इनपुट ज़ीरो, आउटपुट ज़्यादा, तो उस चलते भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते भी लोग सुसाइडल अटैम्प्ट कर लेते हैं। लीगल प्रॉब्लम, अभी अभी शादी हुई, वाइफ से नहीं बनी, उसने 4 केस डाल दिए, FIR भी करा दी, दहेज मांगते हैं घर वाले, ससुराल वाले, डाइवोर्स का केस भी डाल दिया, मारपीट का, डोमेस्टिक वायलेंस का भी डाल दिया, मेंटेनेंस का केस भी डाल दिया, तो आदमी थक हार के सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। डेथ ऑफ लव्ड वन, अगर किसी के घर में किसी प्रिय व्यक्ति की डेथ हो जाए, चाहे हमारे फादर मदर या हमारी हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, तो ऐसे केसेस में भी लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसके अलावा readily availability of suicidal means is also one of the contributing factors towards the increasing suicidal attempts in our country and worldwide। जैसे अगर किसी घर में पहले से ही पिस्तौल है, गन है, पिस्टल है, वेपन है, तो जैसे ही लड़ाई होगी वो क्या करेगा कि अभी तेरे को बताता हूँ, वो सबको मारेगा और ख़ुद को भी मारेगा। अगर हमारे घर में कोई जहरीली सब्सटेंस है, जैसे ये चूहे मारने की दवाई है, या गेहूं में, कनक में, चावलों में रखने की दवाई है, और आप अपनी ज़िंदगी से परेशान है, तो आपको ध्यान आएगा ये दवाई पड़ी है, इसको पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूं। तो रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ सुसाइडल मीन्स इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जेनेटिक्स, ये पाया गया है रिसर्च में कि अगर किसी के दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा ने कभी सुसाइड अटैम्प्ट किया है, सुसाइड से मरे हैं, तो 38 से 55% चांसेस हैं कि आने वाली जनरेशन में भी कोई बच्चा सुसाइडल अटैम्प्ट या सुसाइड कर सकता है। प्रीवियस अटैम्प्ट्स, अगर किसी ने अपने बचपन में, एडोलसेंस में, टीनेज टाइम में सुसाइड अटैम्प्ट किया है, खुद को ब्लेड से काटा है, दीवार में सिर मारता है, सेल्फ हार्म करता है, तो ऐसे केसेस में भी आने वाले टाइम में वो सुसाइडल अटैम्प्ट कर सकता है। मेंटल इलनेस, अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई ऐसी बीमारी है जो जिससे वो जूझ रहा है, वो व्यक्ति सुसाइड अटैम्प्ट कर सकता है। और ऐसा देखा गया है कि सुसाइड करने वाले 80% व्यक्ति कभी ना कभी डॉक्टर के पास जरूर गए होते हैं। आप कैमरे को पैन करते हैं ना यहाँ, कभी ना कभी डॉक्टर के पास जरूर गए हुए हैं। जूम मत करना, आप ऐसे ले आओ ना, मैंने आपको बताया था। कभी ना कभी डॉक्टर के पास ज़रूर गए होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ। तो हम डॉक्टर्स जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो लोग पहचान लेते हैं कि आने वाले टाइम में ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सब्सटेंस मिसयूज़, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके 15 से 61% चांस होते हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लें। जो लोग सिगरेट, सिगार, बीड़ी, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा खाते हैं उनके अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सेल्फ हार्म, जो बात बात पे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ब्लेड से काट लिया, दीवार में सिर मार लिया, खुद को थप्पड़ मार लेते हैं कई लोग बात करते करते गुस्से में, ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मेडिकल कंडीशन, अगर किसी को टर्मिनल मेडिकल इलनेस है, जैसे किसी किडनियाँ फेल हो गई, किसी को एड्स हो गया, किसी को कैंसर हो गया, या किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो वो लोग भी अपनी ज़िंदगी से आगे सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। इनसोम्निया, जिन लोगों को नींद कम आती है, नींद ही नहीं आ रही, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नींद ही नहीं आ रही, तो ऐसे लोग भी सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अब वो चीज़ें हमारे दिमाग की वो कंडीशन जिससे कि एक व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेता है। नंबर 1, होपलेसनेस, किसी को उम्मीद ना हो, लॉस ऑफ प्लेजर इन लाइफ, कोई ज़िंदगी में खुशी ही नहीं है, खुशी ही नहीं है ज़िंदगी में, पैसे भी नहीं है, गरीब है, बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं पेरेंट्स का या उस व्यक्ति का, उसको टीचर्स भी डांटते हैं, सोसाइटी वाले भी उनके साथ ठीक से डील नहीं करते। ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। डिप्रेशन, जो अपनी ज़िंदगी में अवसाद में है, उनमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। एंग्शियसनेस, अगर आपके अंदर घबराहट है, मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता, इधर रहूँ इधर नहीं मन लगता, और जाऊँ उधर मन नहीं लगता, ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। एजिटेशन, जो सारा दिन लड़ाइयाँ करते हैं, इरिटेट रहते हैं सोसाइटी से, ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं। रिजिड थिंकिंग, जो अपनी सोच को बदलते नहीं हैं, नहीं मैं ही ठीक हूँ, ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। रूमिनेशन, रूमिनेशन का मतलब होता है चिंतन, सारा दिन चिंता करते रहते हैं,
करते कुछ है नहीं, मैं चिंता कर रहा हूँ। ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। थॉट सप्रेशन, जो लोग अपनी सोच को दबा कर रखते हैं, डॉक्टर बनना था लेकिन पैसे नहीं थे, या पेरेंट्स बोले कि अभी तू घर के लिए कमा, डॉक्टर बन के क्या करेगा, तो वो थॉट को सप्रेस कर लिया, आगे चल के सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं। पुअर कॉपिंग स्किल्स, जिन लोगों के अंदर कॉपिंग स्किल्स नहीं होती, ज़रा सा कुछ कह दिया, इसको डांट दिया, रोने लगी, हाय क्या हो गया, क्या कह दिया, क्यों कह दिया, ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। जो लोग मैरिड होते हैं, ऐसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और एक वर्ड होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म को हिंदी में कहते हैं मनोविक्षुब्धता, यानी जिन लोगों को अपने ऊपर आत्मसंदेह रहता है, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने आज एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया, ठीक किया ना, 4 लोगों से पूछेगा ठीक किया ना, ठीक किया ना। जिन लोगों को अपने ऊपर आत्मसंदेह रहता है, ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और न्यूरोटिसिज्म का एंटोनिम, विपरीत होता है ऑप्टिमिज्म, यानी जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी कम होती है। जो लोग भजन में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, अच्छे सत्संग में जाते हैं, जैसे आपके आदर्शन एकेडमी में आपको स्पिरिचुअल करिकुलम भी है, ऐसे लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी कम होती है। इसीलिए जब आप अपने दादा दादी, नाना नानी के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान देख रहा है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। जो लोग इसको मुस्लिम धर्म को मानते हैं, रिसर्च में पाया गया कि द सुसाइडल टेंडेंसी इज लीस्ट अमंग मुस्लिम पर्सन्स। इसका कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है रिसर्च एज सच, बट ऐसा कहा गया है कि मुस्लिम्स के अंदर कम होता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, जहां पर आपका काम ही आपकी आत्महत्या का कारण बन जाए, उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल फैक्टर एज सुसाइडल टेंडेंसी। जो लोग मिलिट्री में होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज में, नेवल फोर्सेज में या एयर फोर्सेज में, उन लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो लोग घर से दूर होते हैं और ऐसी जगहों पे पोस्टेड होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, सीनियर्स भी डांटते हैं, और फिर वो लड़ते भी हैं दुश्मनों से, गोलियां मारते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं। तो जिस कारण से उनको अपनी लेटर लाइफ में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे PTSD बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट आई है कि 1985 से लेकर 2024 तक पिछले 39 ईयर्स में 2000 से ज़्यादा मिलिट्री वेटरन्स ने सुसाइड कमिट किया है, बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ इन देयर सर्विस लाइफ। मीडिया, जितने भी अपने ये जो OTT, ओवर दी टॉप OTT प्लेटफॉर्म सुना है ना आपने, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह, वेब सीरीज़ आती हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रही हैं, इनके ऊपर कोई कंटेंट मॉडरेशन तो रहा नहीं, कुछ भी दिखा रहे हैं वो लोग, अश्लीलता भी दिखा रहे हैं, सुसाइड भी दिखा रहे हैं, गाली गलौच भी दिखा रहे हैं, वायलेंस भी दिखा रहे हैं। तो सुसाइड को भी रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है कि जी कपल था, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, घर वालों ने शादी नहीं कराई और उन दोनों ने सुसाइड कर ली और लेटर लिख दिया बढ़िया सा, मम्मी मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, पापा मैं आपको छोड़ के जा। तो जिससे हमने वहाँ से सुसाइड सीख लिया, और इस इफ़ेक्ट को जब हम किसी और को सुसाइड करके सुसाइड करना सीखते हैं, इसको बोलते हैं कॉपी कैट इफेक्ट, और इसका एग्जैक्ट टर्म होता है वर्दर इफेक्ट, WERTHER, वर्दर इफेक्ट। एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, हमारा पर्यावरण भी, आसपास का एनवायरनमेंट भी हमारी सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। रिसर्च में पता लगा कि क्रिसमस के आसपास और विंटर सीजन के आसपास सुसाइड कम हो जाती है, और स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में सुसाइड बढ़ जाती है। और ये रिसर्चर्स को पता लगा कि सनशाइन एक्सपोजर, जो सूरज की किरणें हैं, उसकी भी हमारे सुसाइडल टेंडेंसी पे असर होता है। एयर पोल्यूशन वगैरह से भी, वाटर पोल्यूशन वगैरह से भी हमारी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। अदर फैक्टर्स, दूसरे क्या कारण हो सकते हैं, ट्रॉमा, जैसे आप बच्चों के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो रहा है, सारा दिन पेरेंट्स डांटते हैं, फिर यहाँ टीचर्स भी आके डांटते हैं, पढ़ता नहीं है, क्या बनेगा, स्कोल्डिंग हो रही है, या सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, जैसे जो फॉस्टर गर्ल्स होती हैं, ऑर्फन गर्ल्स होती हैं, उनके रिलेटिव्स या उनके वन ऑफ द पेरेंट्स या कोई सिबलिंग्स उनका सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। ऐसी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ से ग्रसित बच्चे या लोग भी लेटर ऑन लाइफ में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। गैम्बलिंग, जुआ खेलने वाले 12 से 24% व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब आप कहोगे जी हमारे घर में कौन जुआ खेलता है? जुआ खेलना केवल ताश होती है, 52 पत्तों से जुआ खेलना नहीं होता। जितनी भी आपकी ये गेम्स हैं, IPL 11 गेम्स, ड्रीम 11 गेम्स, 50 रुपये लगा रखे हैं मैंने टीम बना के, 100 रुपये लगा रखे हैं, 2000 रुपये लगा रखे हैं, तो 12 से 24% चांस है कि वो व्यक्ति सुसाइड कर लेगा, क्योंकि एक तो वो एडिक्ट हो गया है उसका, और सेकेंडली वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाता है, पैसे उधार ले लिए।
हाँ, एविएटर जिसमें हवाई जहाज उड़ता है, हाँ, तो उसमें कई लोग अपने जो पैसे हैं वो खो देते हैं और अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। रैशनल सुसाइड होता है जहाँ पर सुसाइड को रीजनिंग करके लोग सुसाइड करते हैं कि देखो मैंने सही किया। जैसे यूथेनेशिया मैंने आपको बताया था, क्या मतलब था यूथेनेशिया का? यूथेनेशिया का मतलब बताया था कि जहाँ पर एक व्यक्ति को इतना दर्द हो रहा होता है अपनी बीमारी से, तो वो सरकार से कहता है कि मुझे मार दो, तो उसे रैशनल सुसाइड बोलते हैं लोग। या फिर घर वालों की सुरक्षा के लिए, उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई सुसाइड कर ले, उसको लोग रैशनल सुसाइड बोल देते हैं कि जी घर में 6 ही रोटी हैं और लोग 7 हैं, तो 7वां आदमी सोचता है तू सुसाइड कर ले, 6 को तो रोटी मिलेगी, तो उसे रैशनल सुसाइड की कैटेगरी में लोग समझते हैं। प्रिवेंशन, अब कैसे रोक सकते हैं हम सुसाइड होने से? पहली बात तो सुसाइडल प्रिवेंशन या सुसाइड प्रिवेंशन एक कलेक्टिव एफर्ट है, स्कूल का, सोसाइटी का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, रिलेटिव्स का, और जितने भी लोग हम सब सोसाइटी हैं उनका एक सोशल कोलैबोरेटिव एफर्ट है सुसाइड प्रिवेंशन। रिड्यूसिंग एक्सेस टू दी सुसाइडल मीन्स, अगर आपके घर में पिस्तौल ही नहीं होगी, गन ही नहीं होगी, मिट्टी का तेल ही नहीं होगा, जहरीली वस्तु ही नहीं होगी, तो आप 100 बार सोचेंगे सुसाइड करने से पहले। या फिर जो बैरियर्स लगा के, ऊंची बिल्डिंग्स पे बैरियर्स लगा के, अब अपने जींद रोड वाले पुल पे अगर आप जाएंगे, गए हो कभी जींद रोड वाले पुल पे? तुम गए हो ना? तो वहाँ पे जो रेलवे लाइन है पुल के नीचे, उसके ऊपर जब वो पुल आता है तो उसको कवर कर रखा है बैरियर लगा के, जाली लगा के। हाँ, तो वो क्यों कर रखा है कि वहाँ से कोई नीचे ना देखे, कोई उसके ऊपर से कूद ना जाए, वरना नीचे कई हज़ार वोल्ट की इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं और ट्रेन आ रही हो, उसके आगे कोई कूद जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो रिड्यूस दी एक्सेस टू दी सुसाइडल मीन्स। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स जो हम आपके साथ कर रहे हैं, अभी स्कूल में जाके बच्चों को बताएं कि सुसाइड करने गलत बात है या ये सुसाइड से आपका नुकसान हो सकता है। क्राइसिस हॉटलाइंस होता है वो टेलीफोन नंबर जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि जब भी आप सुसाइड करने की सोचे तो आप एक बार उस नंबर पे कॉल करके पूछ लें कि भाई मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है जी, मैं ठीक हूँ कि नहीं मेंटली, मैं ये सोच रहा हूँ, सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। जब भी आप गूगल पे टाइप करेंगे कि भाई मैं आपको सुसाइड करनी है, बताओ कैसे सुसाइड करूं, तो गूगल आपको ये नहीं बताएगा कि आप फांसी खा लो, जहर पी लो, आग लगा लो, बिल्डिंग से कूद जाओ। गूगल आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं और आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। डाइट, हमारी डाइट का भी हमारी सुसाइडल टेंडेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मैडम। जिन लोगों के अंदर विटामिन B2, B6, B12 की कमी होती है उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा पाई गई है। जो लोग मीठा बहुत खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी खाते हैं, रिफाइंड शुगर खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर डिप्रेशन डेवलप करने की संभावना ज़्यादा होती है कि जो लोग ये खाते हैं। स्क्रीनिंग, कैसे स्क्रीन करें ये समझें कि एक व्यक्ति सुसाइड कर सकता है या करने वाला है। इसके लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सुसाइडोलॉजिस्ट ने या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सुसाइडोलॉजिस्ट ने एक पाथवे बनाया जिसका शॉर्ट फॉर्म रखा उन्होंने, एक्रोनिम इज पाथवारम, ISPATHWARM, इज पाथवारम। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें आई का मतलब होता है आइडिएशन। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मरने का मन कर रहा है, दैट मीन्स वो सुसाइड कमिट कर सकता है। एस का मतलब होता है सब्सटेंस अब्यूज, अगर किसी ने नशा करना शुरू कर दिया है, शराब, हुक्की, अफीम, जो भी वो करना शुरू कर चुका है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। पी का मतलब होता है पर्पजलेसनेस, अगर कोई आपसे कहे लाइफ का तो कोई पर्पज़ नहीं है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, अर्थ क्यों है, हम यहाँ पे क्यों हैं, या मन में दिमाग में आता है, तो इसका मतलब वो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर सकता है। ए का मतलब होता है एंग्जाइटी का मतलब घबराहट, अगर उसको घबराहट होने लगी है आने वाले टाइम में, अभी हो रही है उसको, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी कर सकता है। टी का मतलब होता है ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, कि मेरे पास तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है तो सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। एच का मतलब होता है होपलेसनेस, जिसको जीवन से कोई उम्मीद नहीं रही है, बस अब कुछ नहीं हो सकता, जो करना था सब कर लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, होपलेसनेस। डब्ल्यू का मतलब होता है विड्रॉल, अगर किसी ने अपने आप को खुद से, फैमिली से, सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से, वर्क प्लेस से विड्रॉ कर लिया है। जैसे हम 4 लोग बैठे हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन एक दिन 3 लोग ही आए वहाँ पे, बोले यार वो नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए उससे बात हुए, तूने देखा नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, कोई बातचीत भी नहीं, तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। ए फॉर एंगर, अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आने लगा है अचानक से, आप देखिएगा कई बार ऐसे लोग बिहेव करते हैं,
अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं। अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है तो सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। R स्टैंड्स फॉर रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मीन्स रिस्की बिहेवियर। अगर कोई आदमी रिस्क लेने लगा है अपनी लाइफ में, छत के कोने पे जाके बैठा है, ऊंचाई से नीचे देख रहा है, डर ही नहीं लग रहा अब उसको, या फिर गहरे पानी में उतर जाता है, मुझे नहीं डर लगता, या आग जला के उसके साथ खेल रहा है उसके ऊपर, ऐसा रेकलेसनेस वाला बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर भी सुसाइडल टेंडेंसी का प्रतीक हो सकता है। M स्टैंड्स फॉर मूड चेंजेस। अगर एक व्यक्ति के बार बार मूड चेंज हो रहे हैं, अभी खुश था, थोड़ी देर बाद उदास है, फिर रोने लगा, फिर गुस्सा होने लगा, फिर उदास है, फिर खुश है, फिर गुस्सा होने लगा, फिर रोने लगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। जो लोग डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैडम, उनके अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। यानी जो डिप्रेशन है वो तो सुसाइडल टेंडेंसी कॉज कर ही सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी सुसाइडल टेंडेंसी कॉज कर सकता है। बिकॉज इन डिप्रेशन वी प्रिस्क्राइब ए ड्रग नेम SSRI, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, और वो ड्रग्स लेने वाले लोग, वो दवाई लेने वाले बच्चे, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। केयरिंग लेटर्स लिख के सुसाइड होने से रोका जा सकता है। एक वेस्टर्न कंट्री में स्टडी हुई, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के पास कोई सुसाइड करने वाला जाता है तो वो पहचान लेता है कि भाई आने वाले टाइम में सुसाइड कर सकता है। केयरिंग लेटर्स शुरू किए गए, यानी जिसमें डॉक्टर पेशेंट को लेटर लिखता था कि भाई हम इस हॉस्पिटल से हैं, मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपको याद हूँ मैं, आप ठीक हो। तो उधर से उस व्यक्ति का रिप्लाई आ जाता था कि भाई हाँ वो ठीक है। तो इससे डॉक्टर समझ जाता था कि अभी तक उसने सुसाइड नहीं की है। इसका मतलब क्या है? किसी का हाल चाल पूछने से भी उसको मेंटल सपोर्ट मिलता है। अब जैसे हम सब मिलते हैं जब आपस में, तो हेलो हाई करते हैं, उसके बाद पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो आप। तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो ये कह देगा कि मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है, आप उसका लोन चुका दोगे। इसका मतलब होता है कि आपने उसको एक सपोर्ट दिया कि हम हैं तेरे साथ, कि कोई दिक्कत आएगी हम हैं तेरे साथ। तो इसीलिए एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहिए, जिससे कि वो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप ना करे। मेथड्स, अलग अलग देशों में लोग सुसाइड करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे भारत में लोग फांसी खा के आत्महत्या करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ब्रिटेन में और ब्रिटिश कंट्रीज़ में लोग ऊंची बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। USA में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो तरीका सही रहेगा। सेक्स एंड जेंडर, सुसाइडल टेंडेंसी फीमेल्स में और मेल्स में डिफरेंट होती है। ज़्यादा फीमेल सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मरते मेल्स ज़्यादा हैं। लड़के लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते मरने की, लड़कियां ज़्यादा करती हैं, लेकिन लड़के फिर भी ज़्यादा मरते हैं। उसका कारण है कि लड़के ज़्यादा लीथल वे अपनाते हैं कि आज तो बस आर या पार, और लड़कियां डर डर के सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं। इस कारण से द डेथ और द फेटल सुसाइड्स आर 1.8 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। और अगर हम एज की बात करें तो 15 से 29 साल के लोगों के बीच में सुसाइड ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद 45 से 70 साल एल्डरली पीपल के बीच में सुसाइड ज़्यादा कॉमन है। और ना केवल ह्यूमन बीइंग्स बल्कि दूसरे एनिमल्स भी सुसाइड कमिट करते हैं, जैसे डॉग्स, हॉर्सेज एंड डॉल्फिन्स। अगर डॉग का मालिक मर जाए, हॉर्स का मालिक मर जाए, तो कई बार डॉग्स, हॉर्सेज खाना खाना बंद कर देते हैं कि हमारा मालिक चला गया और हम भी कुछ नहीं खाएंगे, और वो भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इसके अलावा एक पी एफिड नाम की इंसेक्ट होती है, और जब उसके ऊपर लेडी बग अटैक करती है, उसको लगता है पी एफिड को कि भाई अब तो लेडी बग मेरी सोसाइटी को, मेरे परिवार को मार देगी, तो वो पी एफिड खुद को ब्लास्ट कर लेती है, एक्सप्लोड कर लेती है, जिससे वो खुद भी मर जाती है और लेडी बग को भी मार देती है। सल्मोनेला एक ऑर्गेनिज्म होता है, जब उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है, तो बैक्टीरिया को जब उसे लगता है कि मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी, तो सल्मोनेला खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो ये था हमारा लेक्चर सुसाइड प्रिवेंशन पे, और ये क्यों बताना ज़रूरी था कि लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल। आपका फर्स्ट आना, आपका IPS बनना, IAS बनना, जज बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ज़िंदा रहना। आपकी धड़कनें और सांसें चलनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये जज है तो इसको बचाना ज़रूरी है, उसके अंदर सांसें वापस लाने की वो पूरी कोशिश करता है। जब भी आप लाइफ पे डिप्रेस्ड फील करें कि अब तो ये हो गया, या मैं कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकती, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पेरेंट्स से बातचीत करो, सलाह लो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि बात करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकलता है, और लाइफ को ख़त्म करने से किसी बात का सोल्यूशन
नहीं निकलता. So once again, I am very thankful to the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and Director General Health Services, Panchkula, Government of Haryana, for giving me this opportunity to deliver lectures in various schools, colleges, and coaching institutes from 10 September to 16 September 2024 on the occasion of the observance of World Suicide Prevention Day in our district, Kaithal, and I am doing my duty to level best by visiting these institutions. Thank you very much.